फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड होंगे और उन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें या कौन सा मेथड हम अप्लाई करें ताकि हम उन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। सो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको इसी तरह मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ क्वेश्चन सेज दैट these are the three values. If x plus y plus z is equals to 1 and over here x square plus y square plus z square is equals to 2 and finally x cube plus y cube plus z cube is equals to 3. Okay, in this question these three parts are given and ask about the value of x, y, z. We have to find out the value of this x, y, z. सो अब हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कर रखी हैं। सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम बात करते हैं कि क्यूब और 3 वेरिएबल्स का क्यूब वो केवल एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज़ कंडीशनल आइडेंटिटी। सो कंडीशनल आइडेंटिटी ओवर हियर हम डिस्कस करते हैं। सी सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz that will be equals to, we all know that this is equals to x plus y plus z and x square plus y square plus z square minus of xy minus of yz and minus of zx will be there. So this is the identity over here and we all know that we know the value of x cube plus y cube plus z cube from over here to here and x plus y plus z again we know the value, x square plus y square plus z square again we know the value, but we don't know the value of xy minus this yz minus zx. So we have to find out the value of what, xy plus yz plus zx. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बात कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ओवर हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सो वी नो दैट only one identity, x plus y plus z whole square will become equals to x square plus y square plus z square plus twice of xy plus yz plus zx is there. Okay, and we have to put the value of x plus y plus z is equals to 1 over here. This is, we know the value from this, so 1 ka square that will be equals to 1 plus this is x square y plus y square plus z square. We know the value of x square plus y square plus z square over here. So this can be written as, the value is 2 plus 2 and finally this unknown value xy plus yz plus zx will be there. Okay, so from this we get the value of xy plus yz plus zx, that is equals to what, this is minus 1 by 2. So after getting the value of this we get the answer also. How? See, we have to put all these values and the value of x, y, yz and zx from here to in this identity. इस identity के अंदर हम put कर देंगे, so you get the result finally. So x cube plus y cube plus z cube, the value of x cube plus y cube plus z cube is what? This is the value over here. हम यहाँ लिख रहे हैं इसको. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z over here x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. सो वैल्यू हमने यहाँ से डाली इसकी। सो 3, इसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 एंड माइनस कॉमन ले लेते हैं और वी गेट द वैल्यू ऑफ ओवर हियर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. सो ओवर हियर माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड फाइनली व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस minus over here what we get, this is 2 plus 1 by 2, that is 5 by 2. 5 by 2 इधर से इधर आएगा. So over here we get 5 by 2 minus and this is equals to 3 times of x y z over here. So what we get from this, we get 6 minus 5 after taking the LCM. What we get, this is 1 by 2 is equals to 3x y z. Finally we say that the value of x y z is equals to this 1 by 6. This will be our answer final. This is our final answer.
So in this way we have to solve, we have to apply the different approaches of different algebraic identities. So this is our answer, that is xyz is equals to 1 by 6. Now the second question, from the second question, this second question says that if x plus 1 upon x is equals to 5, okay, x plus 1 upon x is equals to 5, then find out the value of this is x cube minus 5x square plus x plus 1 upon x cube minus 5 upon x square plus 1 upon x. We have to find out this value of this expression. So without wasting our time, we are just substituting the values of this to this, okay, and we have to rearrange this expression firstly. So सबसे पहले अरेंज किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया हमने, एक्स क्यूब दिस टर्म एंड दिस टर्म, दिस विल बी 1 upon x cube. Over here again from this term and this term we have to take the -5 कॉमन, -5 कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फाइनली जो बची हुई टर्म्स थी हमारे पास दिस एंड दिस. सो व्हाट वी गेट, वी सी दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स विल देयर. नाउ अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है. सो हमें किन किन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. सो वी नो दैट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अगर हमको निकालना है, सो व्हाट वी से, वी हैव टू डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ओवर हियर. सो जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा तो वो उधर हम सेंड कर देते हैं. सो 25 माइनस 2 दैट विल बी 23. सो अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर. नाउ अगेन we have to find out the value of x cube plus 1 upon x cube. So we know that x cube plus 1 upon x cube over this, इस इक्वेशन को अगर हम क्यूबिंग बोथ द साइड कर दें, सो व्हाट वी गेट, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 125 आएगा, 125. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 125 आ रहा है. सो ओवर हियर वी नो द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. सो यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू. सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 125 माइनस, अब इसकी वैल्यू है 5 और इंटू होगा 3 से, 5 से 15 और वो उधर जाएगा, सो दैट विल बी -15. सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 110. This is the value of x cube plus 1 upon x cube. This is x square plus 1 upon x square, and this is x plus 1 upon x. So we have to substitute these values from here to here. So what we get, x cube plus 1 upon x cube that is equals to 110 minus 5. Over here x square plus 1 upon x square की value है 23, and over here x plus 1 upon x की value है 5. So over here we see that 110 minus this can be written as 115 plus 5. So over here this will be cancelled out and we get the answer is equals to 0. So this is our answer. So इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है, और ये डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओलंपियाड्स के अंदर, स्पेशली एनटीएससी के अंदर. सो इस तरीके से हम उनको अटेम्प्ट करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. That is our question. Next, third question. If x plus a upon b plus c plus x plus b upon c plus a plus x plus c upon a plus b plus 3 is equals to 0, then find the value of x. Over here हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या करते हैं, हम अगर डिफरेंट लॉजिक से चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, बट उसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. 4 ऑप्शंस हैं तो मतलब टिपिकल हो गया क्वेश्चन, यानी कि एक बार वैल्यू x की पुट करें, फिर दोबारा, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम. सो लेंथी हो गया एंड टाइम टेकिंग हो गया, हमें टाइम सेविंग करनी है. सो ओवर हियर वी हैव टू एडजस्ट दिस 3 इन दीज 3 टर्म्स. इस 3 को हम एडजस्ट करेंगे इसके अंदर. सो वी कैन राइट इट एज x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1
प्लस एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 over here. So this will be one expression and this and this. So again we are taking the LCM over here. What we get, this is equals to b plus c, and over here x plus a plus b plus c over here plus again इसका LCM लिया तो क्या आ गया मेरे पास c plus a आया, तो ऊपर लिख सकता हूँ मैं LCM x plus b plus c plus a. We get again the LCM is a plus b, and finally we get x plus c plus a plus b is equals to 0. क्लियर है? अब देखें यहाँ पे x a plus b plus c, x a plus b plus c, x a plus b plus c. So we have to take this as common part. So x plus a plus b plus c हमने common ले लिया. So what is the remaining part? That is 1 upon b plus c plus 1 upon c plus a plus 1 upon a plus b are the remaining parts. That will be equals to 0. अब हम क्या करते हैं? This and this, either this should be equals to 0 or this should be equals to 0, and in the question says that a is greater than 0, b is greater than 0 and c is greater than 0. तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये greater than 0 है. तो ये कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा? ओनली दिस पार्ट. सो अगर ये पार्ट 0 के इक्वल है, सो व्हाट वी गेट, x plus a plus b plus c is equals to 0. Okay, so if this is equals to 0, then the value of this is what? Minus of a plus b plus c. This is the value and this is the final answer and this is the final value of x. Okay, this is our third question. Next question पे आते हैं, question number 4th. बहुत अच्छे अच्छे questions हैं आपके NTSC पॉइंट ऑफ व्यू पे. आप चाहें तो इसको मतलब देख सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, किस तरीके का इसका वे है, कैसे हम अप्रोच लगा रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो x की वैल्यू दी हुई है अपन को, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस रूट 2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. we have to find out the value of this. So how we can solve it? इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका, हम यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम x स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम दूसरा अप्रोच अप्लाई करेंगे इसके अंदर. सो व्हाट वी से डैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीअरेंज एंड रैशनलाइज. रीअरेंज करा तो दिस इज व्हाट, रीअरेंज नहीं भी करेंगे तो बाद में माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, रूट 2 प्लस 1, एंड रैशनलाइज कर दिया. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. फाइनली व्हाट वी गेट ओवर हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1. सो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1. दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x. सो अगेन दिस वन कम्स हियर, अगर हम उस 1 को इधर लेके आ जाएं और रूट 2 को इधर रहने दें और देन स्क्वायरिंग कर दें बोथ द साइड्स. जैसे हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट दिस. सो ओवर हियर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2, एंड फाइनली व्हाट वी गेट द वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, दिस इज 1 and this is 2. So this one goes over here and this gives the value 1. So we know that x square plus 2x, x square plus 2x की वैल्यू कितनी है, 1. From this equation we substitute the value of x square plus 2x. x square plus 2x यहाँ पे गिवन है मेरे को, ठीक है. अब देखो आपने यहाँ पे हमने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करी है, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो गया है. सो ओवर हियर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, दैट गिव्स 1, and over here 3. So finally what we get, the value is equals to 4. So our answer is x square plus 2x plus 3, that will be equals to 4. This is our final answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनको कंसिडर कर सकते हैं कि हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th अगेन, a plus b plus c into ab plus bc plus ca and minus of abc. Out of these 4 options we have to find out the value.
सो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर देता है। सो करेक्ट आंसर देता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द प्रोफाइल बेसिकली रिलेटेड टू साइक्लिक फैक्टराइजेशन। ये प्रोफाइल है साइक्लिक फैक्टराइजेशन की। साइक्लिक फैक्टराइजेशन की है तो साइक्लिक फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक के बाद एक वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 है तो यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 आ सकती है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 आ सकती है, साइक्लिक इंटरवल के बाद। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको साइक्लिक फैक्टराइजेशन से अगर करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इट मीन्स व्हाट, हमें टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने के लिए। सो हम क्या करते हैं, कोई भी एक साइक्लिक वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेते हैं। सो साइक्लिक वैल्यूज इट इज इक्वल टू, if we consider let we consider a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 3 and put these values in the question। अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उस, और फिर देख लेते हैं ऑप्शन में से किस ऑप्शन से ये आंसर आ रहा है। सो ओवर हियर सी देखते हैं हम। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 1 + 2 a + b + c की जगह 1 + 2 + 3 ओवर हियर a into b that will be equals to 2, b into c that will be equals to 6 and c into a that will be equals to 3, minus of a b c 1 2 3, this gives what, 3 2s are 6 over here, clear? So what we get finally 6 and this is what, 6 3 9 2 11 minus 6, okay? So finally what we get, 60 is the value, 11 6 is 66 minus 6 that will gives 60। अब इससे हमारी वैल्यू 60 आ गई। अब हम यहाँ ऑप्शन चेक करें, किस ऑप्शन में हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं उससे हमारी वैल्यू 60 आ जाती है, किस ऑप्शन में पुट करें। सो हमने क्या करा, हमने पुट करा इसको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर पुट करते हैं, सो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हम पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज a + b into b + c into c + a over here. See, so a + b it is equals to what, a + b that is 3, b + c is equals to what, that is 5 and this is c + a is equals to what, that is equals to 4, 5 6 are 15, 15 4 are 60, this gives 60। so answer is what, first is the option, a is the option, क्लियर है। सो ये अप्रोच है, ये शॉर्ट ट्रिक है साइक्लिक फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन और करते हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस इज द साइन ऑफ समेशन, ओके, एंड इट इज गिवन दैट इज a b c ओवर हियर, a³ b - c इज इक्वल्स टू व्हाट, k टाइम्स ऑफ a - b b - c एंड c - a, ठीक है, ये गिवन है हमारे को। सो हमारे को पहले तो इसको क्वेश्चन बनाना है। दिस इज द साइन ऑफ समेशन। समेशन इट मीन्स वैल्यूज हमें एक्सचेंज करती हुई चलनी है। जहाँ a है फिर नेक्स्ट टर्म पे b आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ c आ जाएगा, जहाँ c है वहाँ a आ जाएगा। सो वो यार LHS को हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, a³ इंटू b - c प्लस b³ इंटू c - a। देखिए b की जगह c आ गया, c की जगह a आ गया और a की जगह b आ गया, देन प्लस c³, देन c की जगह क्या आ जाएगा a और a की जगह क्या आ जाएगा b। और वही है a b c साइक्लिक आपके चलते जाएंगे। दिस गिव्स व्हाट, k टाइम्स ऑफ a - b एंड b - c एंड c - a ओवर हियर, क्लियर। सो अब ये साइक्लिक फैक्टराइजेशन आ गया अगेन। सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। सो ओवर हियर हमने क्या करा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 वैल्यू पुट कर दी, उससे k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ओवर हियर व्हाट वी गेट, द वैल्यूज ऑफ दिस 1 b - c that is -1 plus that is 8 c - a that will be equals to 2 plus this is 27 c a minus b that is equals to -1, this gives k a minus b that is -1 and 2 c - a। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करा। सो व्हाट वी गेट फाइनली, दिस इज इक्वल्स टू -12 and this is minus plus, this will become equals to k।
सो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -6, k इज इक्वल टू -6. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. इन चारों ऑप्शंस में हमारे को वैल्यूज पुट करके देखनी है. जिस ऑप्शन से आंसर -6 आ जाए वही हमारा आंसर होगा. हमने ए में पुट करी, नहीं आया, बी में करी, नहीं आया, सी में करते हैं. सी देखते हैं, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी की हम बात करते हैं. ऑप्शन सी इज व्हाट, दैट इज -a -b -c. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस. माइनस हमने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 that gives what -6. so we can say this C is the correct answer for the given question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं अच्छे से, और आप देख सकते हैं इनकी अप्रोचेस कुछ डिफरेंट है. हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसे डिफरेंट अप्रोचेस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन नेक्स्ट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. इफ a⁴ + 16 is equals to 4a square and we have to find out the value of a⁴ plus 64. we have to find out this value. अब क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है कंडीशन और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अगर आप रेगुलरली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो आप उलझते हुए चले जाएंगे. सो फाइनली जो निकालना है हम उसकी वैल्यू पे फोकस करें, कंसंट्रेट करें. सो ओवर हियर व्हाट वी सी डैट, हम यहाँ से बात करते, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं, इधर ले आते हैं. सो a⁴ - 4a² + 16 दैट इज इक्वल टू 0. हमने इसको सिंपल रीअरेंज करा है और कुछ नहीं करा है. ठीक है. सो ओवर हियर वी हैव टू फाइंड आउट दिस. अब स्क्वायर के टर्म्स में अगर इसको लिखते हैं तो हम a² + b² का फॉर्मूला नहीं जानते, बट वी नो दैट a³ + b³. okay, so over here we can write it as like this, a² 3, this will become equals to a⁴ plus 4³ okay, and we know the formula a³ plus b³. okay, it's okay. So over here we know the formula of a³ plus b³. a³ plus b³ can be written as a plus b, a² minus ab plus b². okay, so we can write it as a² 3 plus 4³ can be written as a² plus 4a². अब जो a² है इसका भी स्क्वायर करना है मुझे. सो क्या आ जाएगा, a⁴ माइनस a इंटू बी, a² इंटू 4 दैट इज 4a² प्लस b² इज व्हाट, दिस इज b². b की वैल्यू 4 है, b² इज इक्वल टू 16. अब देखें ध्यान से, a⁴ - 4a² plus 16 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर. सो व्हाट वी गेट, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट गिव्स 0. सो आंसर इज a⁴ plus 64. इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, आगे चलते हैं. 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे. हम आई थिंक अभी 7th पे आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. दिया हुआ है आपको, इफ p/q प्लस q/p इज इक्वल्स टू 2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p/q raised to power 23 प्लस q/p raised to power 7. यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. अब आपको पावर देखते ही चक्कर आ जाएगा. पावर देखते ही चक्कर नहीं आना है. ठीक है, वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, सो सी लेट वी हैव टू अज्यूम. हमने क्या करा, एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ p/q है तो यहाँ उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है, q/p है. सो वी हैव टू अज्यूम दैट लेट p/q इज इक्वल टू x. सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम x + 1/x दैट विल इक्वल टू 2. फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास. ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो फाइनली व्हाट वी गेट, x - 1 इज इक्वल टू 0. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. वी गेट x इज इक्वल टू 1. क्लियर. सो x इज इक्वल टू 1 आया. सो व्हाट वी गेट, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, p/q इज इक्वल टू 1. ये हमारे को दिया हुआ है.
और रेसिप्रोकल ऑफ x 1/x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, दैट इज इक्वल टू q/p इज ऑल्सो इक्वल टू 1. So we have to put the value of this over here. So what we get 1 raised to power 23 plus 1 raised to power 7, that is equals to 2. So our answer is this is equals to 2. So this is again one of the most important question over here. Next question पे आते हैं. Next question क्या कहता है? If x raised to power 47 is divided, x raised to power 47 plus 1 is divided by x square minus 1. Okay, so we have to find out the remainder. So we know that this is what dividend, this is what divisor. So according to division algorithm, अब ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से नहीं हो सकता. रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर एक्सप्रेशंस. ये उसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, वी हैव टू फॉलो द डिविजन एल्गोरिथम. वी नो दैट डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder is there. Okay, so we know this theorem and we have to follow this. So over here what we say, x raised to power 47 plus 1 is equals to x square minus 1. अब x square minus 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x minus 1 and x plus 1 will be there and quotient whatever be the quotient, this is हमने assume कर लिया उसको, that is equals to qx and remainder. अब बात आती है रिमाइंडर की. जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो है रिमाइंडर. अब देखें कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 2, क्वाड्रेटिक है, यानी कि रिमाइंडर उससे छोटा होना चाहिए. डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर होता है. अगर डिवाइजर के इक्वल भी होता है तो वापस से डिवीजन हो जाता है. सो वही है, हमारे को डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर लेना है, तो डिवाइजर है क्वाड्रेटिक, तो रिमाइंडर आएगा लीनियर. सो लेट वी हैव टू अज्यूम दैट रिमाइंडर इज ax प्लस b. हमने अज्यूम करा कि रिमाइंडर हमारा क्या है ax प्लस b है. नाउ केस वन हम चलते हैं. केस वन के अंदर दैट इफ वी हैव टू पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन इट मीन्स व्हाट, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दिस गिवन इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन के अंदर हम अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन. तो उसको हम सॉल्व करेंगे. सो ओवर हियर इफ x इज इक्वल टू 1, x रेज़ टू पावर 47, 1 रेज़ टू पावर 47 दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो दिस पार्ट विल बिकम 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. एंड दिस ओवर हियर अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट वी गेट a प्लस b. दिस इज आर इक्वेशन 2. हमारी इक्वेशन 2 हो गई. केस सेकंड की बात करते हैं. सेकंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें, सो व्हाट वी से दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन द इक्वेशन फर्स्ट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 47 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस पार्ट. यहाँ पे माइनस 1 पुट करता हूँ तो 0, तो होल दिस पार्ट विल बिकम 0 बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस b. दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर 3. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें, वी गेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. सो ओवर हियर सी वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशन 2 and 3. सो जैसे हमने ऐड करा, सो व्हाट वी गेट 2 इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ट्वाइस ऑफ b. So finally we get b is equals to 1. If b is equals to 1, we have to put the value of in either of these two equations. Again what we say that a is equals to 1. So a भी आ गया, b भी आ गया. Finally remainder क्या था हमारा, ax plus b. So what we say, a की value 1, तो 1, b की value 1, 1. So remainder is what? This is the remainder. When x raised to power 41 plus 1 is divided by x square minus 1. So this x plus 1 is the remainder and this is our answer. Okay, so the now the next last question, this is question number 9 and आगे चलते हैं तो question number 10th लास्ट क्वेश्चन है अपना, चेक करते हैं. अब इसको करने से पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं कि क्या कहता है कंसेप्ट. इफ x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज, देखें अब मैं मल्टीप्लीकेशन में इसको लिख रहा हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. सो हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है. ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी पे बेस्ड है. सी इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1
is equals to 0 and we have to find out the value of x raised to power 5 plus 1 upon x raised to power 5 over here. ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सो ओवर हियर वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x और इस x को हम शिफ्ट कर देते हैं नीचे. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3. फाइनली व्हाट वी गेट, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3. वी गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3. अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर की वैल्यू करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, वो 2 उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट विल बी 7. अगेन दिस गिव्स द वैल्यू. देन नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू. तो हमने क्या करा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्यूबिंग बोथ द साइड किया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी. दिस इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 27. अगेन फाइनली इसको हम निकाल सकते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ओवर हियर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या है 3. सो 3 and 3 will become 9 is equals to 27. So finally what we get over here, this हमने वैल्यू निकाल ली एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू डेट विल बी इक्वल्स टू 18. क्लियर है, 18. सो ओवर हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस. सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट ओवर हियर 7 पुट करा, दिस वैल्यू विल बिकम 18. सो मल्टीप्लीकेशन में 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3. सो दिस इक्वल्स टू 3. सो दिस इज इक्वल्स टू 126 माइनस 3 एंड फाइनली व्हाट वी गेट, एक्स रेज टू पावर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 123. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो ये थे हमारे मोस्ट 10 important questions based on polynomial part. सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मेरे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें. कोई भी आपको डाउट्स हो पॉलिनोमियल के और लीनियर इक्वेशंस के और रियल नंबर्स के, जो भी लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर रखे हैं. आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.